ابھی کل ہی تو اس نے بڑے چاؤ سے مہندی لگوائی تھی، ابھی تو اس کے سرخ لہنگا پہننے اور دلہن بننے کا چاؤ بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ اسے سفید کپڑے پہنا دیے گئے۔ وہ کانچ کی چوڑیاں جس کی کھنک سے وہ ہمیشہ کھل اٹھتی تھی، آج اس کے ہاتھوں سے توڑ دی گئی۔ ابھی تو اس نے قبول ہے کہا ہی تھا کہ ساتھ کی اس کی زندگی اندھیر ہو گئی، کیونکہ ابھی بلاول خانزادہ پورے خاندان کے ساتھ دھوم دھام سے اپنی من پسند لڑکی کو دلہن بنا کر بڑی عزت سے لے جا رہا تھا کہ راستے میں اس کے دشمنوں نے اس پر حملہ کر دیا، جس میں بلاول خانزادہ اس کے والد دلاور خانزادہ کو قتل کر دیا گیا۔ مقابلہ دونوں طرف سے ہوا تھا، لیکن خانزادہ خاندان کے دو خاص افراد اپنی جان گنوا بیٹھے۔ پورے علاقے میں کہرام مچ گیا تھا۔ بلاول خانزادہ کے گھر میں خوشیوں کی جگہ صفے ماتم بچھ گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو حویلی براتیوں سے بھری ہوئی تھی، اب وہاں سناٹا چھایا تھا۔ عورتوں کی چیخو پکار، مردوں کے غمزدہ چہرے ماحول کو اور زیادہ بوجھل بنا رہے تھے۔ پریزے خانزادہ جو چند گھنٹے پہلے تک بلاول کی دلہن بنی تھی، اب سفید جوڑے میں لپٹی صدمے کی تصویر بنی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے، مگر اس کے ارد گرد موجود لوگ اس کے دکھ پر افسوس کرنے کے بجائے سرکوشیاں کر رہے تھے۔ یہ منحوس ہے، کسی نے آہستہ سے کہا، آتے ہی اپنی شوہر اور سسر کو کھا گئی۔ دوسری عورت نے ہونٹ سکیڑ کر جواب دیا۔ چند لمحوں میں بھی پورے خاندان میں یہ سرکوشیاں پھیل گئی۔ کوئی ہمدردی کے دو بول بولنے کو تیار نہ تھا۔ جو کل تک اسے خوش قسمت کہہ رہے تھے، آج اس کو نحوست کی علامت بنا رہے تھے۔ پریزے کا دل چیر کر رکھ دینے والے جملے اس کے کانوں میں زہر گھول رہے تھے۔ اس نے بے بسی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جو خود بھی آنسو ضبط کرتے ہوئے بیٹی کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب نے اسے قصوروار ٹھہرا دیا اور وہ بے بس خاموشی سے اپنے نصیب کو کوستی رہی۔ بلاول کے کفن کے ساتھ اسے بھی سفید رنگ کا لباس کفن کی صورت میں پہنا دیا گیا۔ باقی سب رنگ اس پر حرام کر دیے گئے۔ اس کے لیے صرف اور صرف ایک رنگ رہ گیا تھا، اور وہ تھا سفید۔ ان کی تدفین کے بعد پریزے خانزادہ کو ایک کمرے میں لے جا کر بند کر دیا گیا۔ حالانکہ شرعی طور پر اس کی عدت نہیں بنتی تھی، لیکن اس حویلی اور گاؤں والوں کے خود ساختہ ریت و رواج کے مطابق اب وہ بیوہ تھی اور عدت میں تھی۔ اب ساری عمر اس نے بلاول کی بیوہ کہلانا تھا۔ حالانکہ وہ صرف 21 سال کی تھی، لیکن اس حویلی کے وڈیروں نے نہ تو اسے باہر نکالنے دیا اور نہ ہی دوسری شادی کر سکتی تھی۔ بس بے رنگ زندگی اسی قید میں گزارنی تھی۔ اس گاؤں کا سردار اعظم خانزادہ، جو اپنے خود کے بنائے ہوئے اصولوں کی خاطر جان بھی دے سکتا تھا اور جان بھی لے سکتا تھا، اس سخت گیر اور بے رحم شخص تھا۔ اس کے لیے بس ایک چیز اہم تھی، اس کے اصول۔ وہ اصولوں کا ایسا پابند تھا کہ کسی کی فریاد، کسی کا دکھ، کسی کی بے بسی اسے متزلزل نہیں کر سکتی تھی۔ نہ وہ کسی کے جذبات کا خیال کرتا، نہ کسی کی تکلیف کا۔ اس کے نزدیک زندگی صرف وہی تھی جو اس کے طے کردہ قوانین کے مطابق گزاری جائے، ورنہ سزا مقدر تھی۔ پورا گاؤں اس کی دہشت سے لرز اٹھتا تھا اور اس کے ایک اشارے پر فیصلے ہوتے اور پتھر کی لکیر سمجھے جاتے۔ کوئی اس کے خلاف زبان کھولنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ جو لوگ اس کے اصولوں پر روگردانی کرتے، وہ یا تو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیے جاتے یا ابرتناک سزا پاتے، دوسرے کے لیے مثال بن جاتے۔ گاؤں میں کئی خاندان تھے، کئی زندگیاں آباد تھی، مگر سب کے سر ہمیشہ جھکے رہتے، کیونکہ اعظم خانزادہ کے سامنے بولنے کی جرت کسی میں نہیں تھی۔ اعظم خانزادہ کا ہر فیصلہ حرف آخر ہوتا، اس کے آگے کوئی سر نہیں اٹھا سکتا تھا، نہ ہی کسی میں اتنی ہمت تھی کہ اس کے کیے فیصلے پر سوال اٹھا سکے۔ وہ صرف گاؤں کا سردار نہیں، بلکہ ایک ایسا حکمران تھا جس کا حکم پتھر کی لکیر تھا۔ اس کے سامنے کسی کی مجال نہیں تھی کہ روایت کے خلاف جا سکے۔ اگر کوئی اس کے بنائے اصولوں پر انحراف کرتا تو اس کی سزا صرف موت ہوتی۔ وہ اپنے فیصلوں میں نرمی برتنے کا قائل نہ تھا۔ پریزے خانزادہ قسمت بھی انہی روایات کی بیم چڑھ گئی تھی۔ شادی کی رات ہی بیوگی کا کفن اوڑھے والی لڑکی اب ایک ایسے قید خانے میں بند کر دی گئی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اس حویلی کی بہو بنی تھی، اور شادی کے چند گھنٹوں بعد اس کے شوہر اور سسر کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ وہ بے گناہ تھی، مگر اس گاؤں میں بے گناہی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہاں فیصلے انصاف کی بنیاد پر نہیں بلکہ رواجوں کے مطابق کیے جاتے تھے، اور وہ رواج یہی کہہ رہے تھے کہ بلاول کی بیوہ کی زندگی کے رنگوں سے محروم کر دیا جائے۔ حویلی کی اونچی دیواروں کے پیچھے اس کی زندگی ایک سائے کی مانند ہو چکی تھی۔ وہ جس کمرے میں قید تھی، وہاں نہ روشنی تھی، نہ زندگی کوئی رمق، بس وقت تھا جو گزرتا جا رہا تھا۔ کبھی وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی جس پر مہندی کا رنگ ابھی ماند بھی نہیں پڑا تھا، اور کبھی اس چوکھٹ کو گھورتی جہاں سے بلاول اسے اپنی نئی دنیا میں لے جانے والا تھا، مگر اب وہ دنیا اجڑ چکی تھی۔
दूसरी तरफ आज़म खानज़ादा की निगाहें अब उसके दुश्मन पर जमी हुई थी, जिसने उसके ख़ानदान पर वार किया था। फरीज़े के वालिदैन के लिए भी ये सब एक भयानक ख्वाब था। वो अपनी बेटी को खुशियों बड़ी रुखसत करके गए थे, मगर अब वो अपनी ही बेटी के लिए कुछ करने से कासिर थे। गाँव के असूलों ने उनके हाथ बांध दिए थे। वो अगर चाहते भी तो अपनी बेटी को वहाँ से निकालें तो ऐसा मुमकिन नहीं था। आज़म खानज़ादा के फैसले के खिलाफ जाना मतलब अपनी जान को खतरे में डालना था, और इतनी हिम्मत इनमें से किसी में नहीं थी। फरीज़े को कैद में दिन, हफ्ते और फिर महीने गुजरने लगे। उसकी आंखों में ज़िंदगी की चमक मदम बढ़ती जा रही थी। वो जो हमेशा खुशबाक, शोख मिजाज और ज़िंदगी से भरपूर थी, अब एक जिंदा लाश बन चुकी थी। हवेली के लोग उसे मनहूस कहकर उसके करीब जाने से भी कतराते थे। उसके लिए हंसी हराम कर दी गई, खुशियाँ उस पर बंद कर दी गई। आज एक अरसे बाद हवेली में चहल पहल और रौनक थी। बरसों बाद खामोश दीवारें फिर से जिंदगी की गवाही बन रही थी। हवेली को बड़े एहतमाम से सजाया जा रहा था। हर तरफ रोशनियों की झलक थी, क्योंकि आज वो दिन था जब इस हवेली का इकलौता वारिस शेरोज़ खानज़ादा लंदन से अपनी तालीम मुकम्मल करके एक कामयाब बिजनेसमैन कर वापस आ रहा था। पूरे ख़ानदान में खुशी की लहर दौड़ रही थी। सब बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहे थे, ख़ासतौर पर उसके दादा आज़िम खानज़ादा, जिनकी आंखों में बरसों बाद एक चमक लौट आई थी। जब शेरोज़ खानज़ादा की गाड़ी हवेली के मरकज़ी दरवाजे पर रुकी तो ख़ानदान के सब अफराद वहाँ पर मौजूद थे। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकला, हर तरफ फूलों की बारिश होने लगी। सब ने मोहब्बत और खुशी से उसका इस्तकबाल किया। वो भाग कर अपने दादा के गले जा लगा और आज़िम खानज़ादा उसे अपने मजबूत बाजू में भींच लिया, जैसे बरसों की जुदाई का हर लम्हा उसे एक लम्हे में समो लेना चाहता हो। ये वही शेरोज़ था जो अपने वालिद और भाई की मौत पर महज 2 दिन के लिए आया था और फिर हमेशा के लिए लौट जाने का फैसला कर लिया था। लेकिन अब वो मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान आ चुका था। हवेली में खुशियों का समा था। सबकी आंखों में उम्मीद और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जैसे ही शेरोज़ अपनी माँ की तरफ बढ़ा, राशिदा बेगम ने उसे सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर ये आंसू खुशी के थे, बेटे को सालों बाद अपने सामने देखने की खुशी के। उन्होंने मोहब्बत से उसके माथे पर बोसा दिया और उसे दुआएं देने लगी। उनके लिए लम्हा किसी ख्वाब से कम न था। हवेली के दरो दीवार जैसे फिर से सांस ले रहे थे। बरसों से जो खामोशी यहाँ बसेरा की हुई थी, वो यकदम टूट गई थी। शेरोज़ खानज़ादा के वापस आने से हवेली में ज़िंदगी की रमक लौट आई थी। मुलाज़मीन भाग दौड़ में मसरूफ़ थे, रिश्तेदार मुबारक देने के लिए आ रहे थे और सबके चेहरों पर खुशियाँ नुमाया थी। शेरोज़ एक अरसे बाद अपने घर की दहलीज पर खड़ा था, जहाँ उसके बचपन की यादें बिखरी हुई थी, मगर उन्हीं दीवारों के बीच वो दर्द भी दफन था जो उसके वालिद और भाई की मौत के बाद यहाँ छा गया था। वो हवेली के अंदर कदम रखता जा रहा था। हर चीज़ इसके जहन में पुरानी यादों को ताज़ा कर रही थी। वो इस बड़े जहन में आया जहाँ कभी वो बिलावल के साथ दौड़ लगाया करता था, जहाँ उसके वालिद दिलावर खानज़ादा शाम के वक्त बैठकर चाय पीते थे। आज वो सब यादें जैसे फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगी। आज़िम खानज़ादा ने शेरोज़ का हाथ थामा और उसे अपने साथ बिठाया। उनकी आंखों में फख्र था, लेकिन साथ ही अनकही सख्ती भी। अब तुम आ गए हो तो हवेली के तमाम मामला तुम्हें ही संभालने हैं। खानज़ादा खून का वारिस अपनी ख़ानदानी असूलों से कभी पीछे नहीं हटता। उनके अल्फाज में वही रवायती सख्ती थी जिसके लिए वो मशहूर थे। शेरोज़ खामोशी से सुनता रहा। वो जानता था उसके दादा उसे एक नई जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं। उसके ज़हन में बहुत से सवालात थे, लेकिन फ़िलहाल खामोश था। शाम होने को आई थी जब शेरोज़ अपनी माँ के साथ बैठा। वो उसे देखती रही, जिसे यकीन नहीं आ रहा था कि उनका बेटा उनके सामने है। बहुत साल लगा दिए वापस आने में बेटा। उनके लहजे में शिकवा था, मोहब्बत भी, दुख भी। शेरोज़ ने उनके हाथ थाम लिए। अम्मी, मैं वापस आ गया हूँ और अब कहीं नहीं जाऊँगा। रात का सुनाटा हर तरफ छाया हुआ था। हवेली के मकीन गहरी नींद में थे, लेकिन फरीज़े को अचानक प्यास का एहसास हुआ। उसे साइड टेबल पर रखे जग की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर वो खाली था। मजबूरन वो बिस्तर से उठकर पानी लेने के लिए नीचे किचन की जाने बढ़ गई। पूरे घर में गहरी खामोशी थी, बस उसके कदमों की मध्यम चाप सुनाई दे रही थी। फरीज़े ने जल्दी से गिलास में पानी अंडेला और चंद घूंट पड़े, फिर वापस अपने कमरे की जानिब चल दी। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, अचानक दरवाज़ा खुला और शेरोज़ खानज़ादा अंदर दाखिल हुआ। वह लंबे सफ़र के बाद थका हुआ आया था, मगर जैसे ही उसकी नज़र सफ़ेद लिबास में मलबूस फरीज़े पर पड़ी, उसकी सारी थकन जैसे गायब हो गई। शेरोज़ की नज़र पलट ना भूल गई। उसे शायद कभी इतनी सादगी में इतनी हसीन शबिया नहीं देखी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा, जैसे कोई ख्वाब देख रहा हो और उस ख्वाब को करीब से महसूस करना चाहता हो। उसकी नज़रें फरीज़े के चेहरे पर मरकूज थी, जहाँ चांदनी की मध्यम रोशनी पड़ रही थी,
और वो नज़ारा इसे मशहूर कर रहा था। परीज़े ने शेरोज़ को यूं अपनी तरफ आते देखा तो उसके चेहरे पर नागवारी के आसार नुमाया हुए। उसे ये रवैया हरगिज़ पसंद ना आया था। वो तेज तेज कदम उठाती फौरन अपने कमरे में दाखिल हुई और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। शेरोज़ वही खड़ा रह गया, साकित जैसे किसी जादू के जेर असर हो। उसके होंठ बेसाख्ता सरगोशी निकली, ब्यूटीफुल। उसके अल्फाज हवा में बिखर गए और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। लेकिन दिल के किसी कोने में ये तस्वीर हमेशा के लिए ज़ब्त हो चुकी थी। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर सब मौजूद थे। मुलाज़िमीन मुस्तैदी से नाश्ता लगा रहे थे। वो हल्की हल्की गुफ्तगू कर रहे थे। शेरोज़ जब नाश्ता के लिए आया तो उसने सबको मुश्तरका सलाम किया और कुर्सी खींच कर बैठ गया। उसने नज़रें घुमाई तो देखा वहाँ सब मौजूद थे सिवाय एक फ़र्द के, मामा। शेरोज़ ने राशिदा बेगम को मुखातिब किया। जी बेटा, वो नरमी से बोली। इस घर में हमारे अलावा और भी कोई है ना? शेरोज़ ने सवाल किया, मगर उसके लहजे में अजीब सी संजीदगी थी। क्या मतलब? राशिदा बेगम ने हैरानी से पूछा। मेरा मतलब है परीज़े भाभी। वो नाश्ता करने क्यों नहीं आई? शेरोज़ के इस सवाल पर एकदम खामोशी छा गई। सब ने लब बींच लिए सिवाय अनुषे के, जो हमेशा खड़ी खड़ी बात कहने से नहीं झिझकती थी। भाई हमारे दकियानुसी ख्यालात के मुताबिक वो मनूस है, क्योंकि अभी पूरी बारात भी घर नहीं पहुंची थी कि बाबा और भाई को दुश्मनों ने मार दिया। तो अब ये डर है कि उस मनूस का साया बाकी सब पर न पड़ जाए, इसलिए ना तो हमारे साथ नाश्ता कर सकती है, ना लंच और ना ही डिनर, ना ही किसी फंक्शन में आ सकती है और ना ही किसी खुशी के मौका पर सबके साथ बैठ सकती है। अनुषे तंजिया लहजे में बोली। शेरोज़ ने खामोशी से सुना, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से से मुट्ठियां बींच ली। शरीली हासिन को कोई इद्दत नहीं बनती, लेकिन हमारे दी ग्रेट दादाजी आज़म खानज़ादा के बनाए गए असूलों के मुताबिक वो इद्दत पूरी करेगी, क्योंकि वो भाई के निकाह में थी। अनुषे ने एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा। अनुषे, ज़ुबान संभाल कर बात करो, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ कि तुम इस घर की बेटी हो। आज़म खानज़ादा की सख्त आवाज़ गूंजी और अनुषे फौरन खामोश हो गई। अलीज़े ने सर झटक कर चुप साध ली, मगर शेरोज़ के लिए ये इंकिशाफ किसी धचके से कम नहीं था। वो अंदर ही अंदर हैरान था कि कैसे बेबुनियाद असूल बना रखे हैं इस खानदान ने। वो जानता था उसके दादा आगे आगे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए फिल वक्त वो खामोश हो गया। मगर उसने फैसला कर लिया था कि अब उसे क्या करना है। वो चुपचाप नाश्ता करने लगा, मगर उसके जहन में परीज़े के बनाए गए उस बेरहमाना असूल को ख़त्म करने की एक नई जंग छिड़ चुकी थी। नाश्ते की मेज़ पर खामोशी छाई रही। शेनोज़ के चेहरे पर संजीदगी थी, मगर उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था। वो जानता था कि यहाँ असूलों के खिलाफ जाना आसान नहीं, मगर जो बात आज उसे मालूम हुई थी उसे यूं ही नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। नाश्ता ख़त्म होते ही सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए, मगर शेरोज़ सीधा अपने दादा आज़िम खानज़ादा के पास पहुंचा। वो हवेली के बड़े हॉल में बैठे हुए थे, जहाँ हमेशा से ख़ानदान के अहम फैसले किए जाते थे। शेरोज़ ने गहरी सांस ली और उनके सामने जा खड़ा हुआ। दादा जान, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, उसने मजबूत लहजे में कहा। आज़म खानज़ादा ने उस पर गहरी नज़र डाली। उनकी आंखों में वही रवायती सख्ती थी। बोलो, क्या बात है? परीज़ी भाभी के साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। ये असूल, ये इंसाफ नहीं है। शेरोज़ के अल्फाज सीधे और दो टोक थे। आज़िम खानज़ादा के चेहरे पर नापसंदगी के आसार नुमाया हुए। ये असूल हमने एक दिन में नहीं बनाए और ना ही तुम्हारे कहने से ये बदलेंगे। दादा जान, मैं जानता हूँ कि आपके असूलों के खिलाफ वर्जी करना आसान नहीं, लेकिन क्या हम दीन से बढ़कर अपने असूलों को मानने लगेंगे? शरीयत में हमें कहीं नहीं लिखा कि परीज़े भाभी को यूं कैद में रखा जाए, उन पर मानूस होने का इल्ज़ाम लगाया जाए। शेरोज़ ने पहली बार सख्त लहजे में बात की। आज़म खानज़ादा ने अपनी छड़ी ज़मीन पर मारी और गुस्से से बोले, बस ये बहस यहाँ ही ख़त्म। हमारे घर के उसूलों पर सवाल उठाने का किसी को हक नहीं, चाहे वो मेरा पोता ही क्यों ना हो। शेरोज़ ने लब बींच लिए। वो जानता था कि बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, मगर वो ये मामला यूं ही नहीं छोड़ सकता था। वो चुपचाप वहाँ से निकल आया, मगर उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वो वाकई इस खानदान के असूलों को बदल सकता है? दूसरी तरफ परीज़े कमरे में बंद अपनी किस्मत पर नुहाकना थी। वो लड़की जो चंद दिन पहले एक खुशो-खरम दुल्हन थी, आज बेबसी की तस्वीर बनी हुई थी। वो खिड़की से बाहर देख रही थी, जहाँ हवेली के मुलाज़िमीन और घर के अफराद हंसी मजाक कर रहे थे, खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, और वो जैसे इस दुनिया का हिस्सा ही ना थी। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। परीज़े ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। ये कौन हो सकता था? इस कमरे में तो कोई आता ही नहीं था। वो आहिस्ता कदमों से दरवाजे के करीब गई और धीरे से दरवाज़ा खुला। सामने शेरोज़ खानज़ादा खड़ा था। आप? परीज़े हैरानी से बोली। क्यों?
मुझे देखकर इतनी हैरानी क्यों हुई? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? नहीं, दो टोक कहा क्या? शेरोज हैरान हुआ। लेकिन क्यों? यहाँ आने की किसी को इजाज़त नहीं, और वैसे भी अगर आप यहाँ यूं ही मुंह उठा के आते रहेंगे तो 1 मिनट में बदनाम हो जाऊंगी मैं, इसलिए प्लीज़ चले जाएं यहाँ से। आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। प्रीजे पहले तो उसकी तरफ देखती रही, लेकिन जब उसे अपनी बात पर डटे देखा तो दरवाजे से पीछे हटकर उसे अंदर आने का इशारा किया। शेरोज अंदर आया और इर्द गिर्द नजरें दुराई। ये कमरा किसी कैद खाने से कम नहीं लग रहा था। ना कोई जीनत, ना कोई रंग, ना कोई खुशबू। आपको इस कैद में से रिहाई दिलवाऊंगा, ये वादा है मेरा, शेरोज ने मजबूत लहजे में कहा। परीजे के लोगों पर तलख मुस्कुराहट उभरी। ये मुमकिन नहीं है। मैं इस हवेली के उसूलों में जगड़ी हुई हूँ। उसूल इंसानों के लिए बनते हैं, इंसान उसूलों के लिए नहीं। मैं इन जंजीरों को तोड़ दूंगा, ये मेरा वादा है। शेरोज के लहजे में अज़्म था। परीजे ने बेयकीनी से उसे देखा। क्या वाकई कोई था जो इसके लिए आवाज़ उठाने वाला था? क्या शेरोज खानज़ादा वो शख्स था जिसकी ज़िंदगी बदलने वाला था? नहीं, आप बिल्कुल ऐसा मत करें, क्योंकि आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे उम्र भर की बदनामी मिल जाएगी। सब कहेंगे कि मैंने आपको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की है। परीजे, जब तक तुम खुद अपने लिए स्टैंड नहीं लोगी तब तक कुछ नहीं बदलेगा। खुद के लिए जीना सीखो, अपनी ज़िंदगी को इस कैद खाने से आज़ाद करवाओ। मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि तुम एक पढ़ी लिखी लड़की होकर भी सबकी बातें चुपचाप मान रही हो, एक नाकर्दा गुनाह की सज़ा काट रही हो। क्या करूँ शेरोज, मैं नहीं लड़ सकती। अगर ज़रा सा भी मैंने सर उठाया तो मेरे वालिदैन का सर हमेशा के लिए झुक जाएगा। कुछ भी नहीं होगा प्रीजे, तुम एक कदम बढ़ाओ तो सही, मैं हर कदम तुम्हारा साथ दूंगा। अगर तुम एक कदम आगे बढ़ती हो, मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाऊंगा। लेकिन आप ये सब क्यों करना चाहते हैं? क्यों इतनी हमदर्दी हो रही है आपको मेरे साथ? क्योंकि मोहब्बत हो गई है तुमसे, चाहने लगा हूँ मैं तुम्हें, ये दिल तुम्हारा विर्द करने लगा है। ये सुनते प्रीजे ने हैरान नजरों से शेरोज खानज़ादा को देखा और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर चढ़ दिया। शर्म आनी चाहिए आपको, अपनी ही बावच पर नजर रखे हुए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आपकी नीयत इतनी खराब है कि अपने ही भाई की बीवी पर नजर रखे हुए हैं। भाई की बीवी नहीं, मिस परीजा खानज़ादा बेवा कहें, और ख़बरदार अगर मेरी पाक मोहब्बत को ख़राब नीयत का लक़ब देकर उसे रुस्वा किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, समझी? और वैसे भी ये तो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, वरना खुदा की कसम तुम्हारी जगह कोई लड़की और होती और मैं उसके हक़ के लिए यूं ही लड़ता। चाहे प्लीज़ निकल जाए यहाँ से। वो रुख मोड़ कर खड़ी हो गई। शेरोज कुछ देर खड़ा उसे देखता रहा, फिर वहाँ से निकल गया। परीजे ने दरवाज़ा बंद किया और आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठती चली गई। बेआवाज़ आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। परीजे घुटनों में सर्दी सिसक रही थी। दिमाग के पर्दे पर शेरोज के अल्फाज गूंज रहे थे। मोहब्बत होगी है तुमसे, ये जुमला किसी बाज़गिश्त की तरह उसके जहन में हलचल मचा रहा था। नहीं, ये सब गलत है, ये सब गलत है। वो बार बार खुद से यही कह रही थी, मगर उसके दिल में कोई और ही जंग छिड़ी हुई थी। शेरोज ने उसके लिए जो कुछ भी कहा था, क्या वो सच है? नहीं नहीं, मैं बिलावल से मोहब्बत करती थी और करती रहूंगी। नहीं, मुझे इन सब फजूल बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मुझे इस मामले को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। उसने आंसू पूछे खुद को संभाला और उठकर कमरे की खिड़की से बाहर देखने लगी। दूसरी तरफ शेरोज अपनी गाड़ी में तेजी से जा रहा था। उसके चेहरे पर तलखी और दुख के आसार नुमाया थे। परीजे का थप्पड़ उसे कम और उसके अल्फाज ज़्यादा उसे तकलीफ दे रहे थे। मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार करके गलती की। नहीं, ये सच है, वो कहने में कोई गलती नहीं, मगर शायद मैंने वक्त का सही इंतखाब नहीं किया। उसने गुस्से से स्ट्रिंग पर हाथ मारा और गाड़ी एक झटके से रोकी। कुछ देर वो खामोशी से अपनी मुट्ठियों को मेज कर बैठा रहा, फिर कुछ देर बाद हस्पताल चला गया। अगली सुबह प्रीजे ने खुद को नॉर्मल जाहिर करने की भरपूर कोशिश की, मगर अंदर ही अंदर वो बेहद मुस्तरब थी। घर के अफराद मामूल के मुताबिक मसरूफ़ थे, मगर उसे महसूस हो रहा था जैसे सबकी नज़रें उसी पर जमी हैं। प्रीजे, ज़रा मेरे कमरे में आओ। ये उसकी सास की आवाज़ थी। वो धड़कते दिल के साथ कमरे में पहुंची। जी अम्मी, बैठो। उसकी सास ने संजीदा नज़रों से उसे देखा। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। प्रीजे चुपचाप बैठ गई। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। क्या हो रहा है तुम्हारे और शेरोज के दरमियान? ये सवाल सुनकर उसके वजूद में सनसनी दौड़ गई। उसके हलक में जैसे कोई कांटा अटक गया। कुछ नहीं अम्मी, वो नज़रें झुका गई। मैंने खुद इसे कल तुम्हारे कमरे से निकलते देखा है। राशिदा बेगम की सख्त आवाज़ गूंजी। वो गुस्से में आगे बढ़ी और हाथ जोड़कर बोली, ये देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ,
تم پہلے ہی میرے ایک بیٹے کو کھا چکی ہو اپنے پیار کے جال میں پھنسا کر، اب دوسرے کو اپنے جال میں مت پھنساؤ۔ ان کی بات سن کر پریزے کو ایسے لگا جیسے کسی نے اسے زمین پر پٹک دیا تھا، اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی گئی ہو۔ وہ ساکت نظروں سے راشدہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کے لب کپ کپا رہے تھے، الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے منہ سے نکل رہے تھے۔ صحیح کہہ رہی ہوں، تم ہو ہی جادو کرنی جو ہر مرد کو پھنساتی رہتی ہو۔ راشدہ بیگم کا لہجہ زہر سے بھرا تھا۔ پریزے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی، جیسے ان کی باتیں جھوٹ ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل ڈھونڈ رہی ہو، مگر وہاں صرف الزامات تھے، بے بنیاد الزام۔ جاؤ، اب شیروز آنے والا ہے، اور ہاں، جب تک وہ گھر میں ہوتا ہے تم اپنے کمرے سے باہر نہیں ہوگی، سمجھ گئی؟ پریزے نے سر جھکا کر بمشکل سر ہلایا۔ جی امی۔ وہ جیسے کسی روبوٹ کی طرح آہستہ آہستہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئی۔ دروازہ بند کرتے وہ زمین پر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس گھر میں صرف ایک بوجھ تھی، ایک ایسا بوجھ جسے ہر کوئی اپنے انداز میں دھکا رہا تھا۔ شام کو شیروز ہسپتال سے گھر آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فریش ہو کر نیچے آیا تو دیکھا کہ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ وہ بے دلی سے ٹی وی لاؤنج میں آ گیا اور ریموٹ اٹھا کر چینلز بدلنے لگا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ علیزے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ہیلو ہینڈسم، جب سے آئے ہو خود میں ہی مگن ہوں، کبھی ادھر بھی نظر کرم کر دو جو تمہاری ایک نظر کی طالب ہے، علیزے نے ادا سے کہا۔ شیروز نے ایک بیزار نظر اس پہ ڈالی اور کوئی جواب دیے بغیر دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ او ہیلو، میں تم سے بات کر رہی ہوں، علیزے نے خفگی سے کہا، لیکن مجھے تم سے بات کرنے کی کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے پلیز یہاں سے چلی جاؤ، میرا دماغ پہلے ہی بہت خراب ہے، مزید اس میں اضافہ مت کرو، شیروز نے خشک لہجے میں کہا۔ علیزے کو اس کی اتنی صاف گوئی کی امید نہیں تھی۔ وہ غصے سے وہاں سے اٹھی اور باہر ہال میں جا کر بیٹھ گئی، جبکہ شیروز بدسور ٹی وی اسکرین پر نظر جمائے بیٹھا رہا تھا۔ شیروز کچھ دیر وہیں بیٹھا بیزاری سے ٹی وی دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگا۔ تبھی اسے اپنی پھپھو کی آواز سنائی دی۔ بابا جان، میں چاہتی ہوں کہ علیزے اور شیروز کی شادی کر دی جائے۔ ویسے بھی شیروز نے ماشاءاللہ سے ہسپتال جوائن کر لیا ہے اور میری علیزے نے بھی اب پڑھائی مکمل کر لی ہے، تو کیوں نہ اب ان دونوں کی شادی کر دی جائے۔ سمیہ بیگم نے اپنی بات مکمل کی۔ شیروز کے قدم وہیں رک گئے، اس کے ماتھے پر تیوریاں چڑھ گئی۔ وہ تیزی سے پلٹا اور ان کے قریب آ کر بولا، معذرت خواہ ہوں پھپھو، لیکن میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں پریزے سے محبت کرتا ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گا، اس لیے آپ میرے اور علیزے کے رشتے کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیں۔ یہ سننا تھا کہ پورے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ ہر کوئی حیرت سے شیروز کی طرف دیکھنے لگا۔ عاظم خانزادہ فوراً اٹھے اور شیروز کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، یہ سب بکواس کر رہے ہو، وہ تمہارے بھائی کی بیوی ہے۔ شیروز نے بغیر جھجک کے جواب دیا، بیوی نہیں دادا جان، بیوہ کہیے، اور کہاں لکھا ہے کہ بیوہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی؟ اسلام میں تو اسے ہر حق دیا گیا ہے، تو پھر آپ کیوں اس پر اپنی مرضی کے قانون لاگو کر رہے ہیں؟ کیا آپ اسلام اور ہمارے نبی سے زیادہ جانتے ہیں؟ اس کی بات نے سب کو لاجواب کر دیا۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، مگر کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی وقت راشدہ بیگم تیزی سے آگے بڑھی اور غصے سے چلائی، پھنسا ہی لیا اس کمبخت نے میرے بیٹے کو، مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا، کاش میں نے تبھی اسے گھر سے نکال دیا ہوتا، پہلے میرا ایک بیٹا کھا گئی، اب دوسرے کو بھی اپنے جال میں پھنسا لیا۔ بس کریں ماما، شیروز نے سخت لہجے میں کہا، حد سے تجاوز نہ کریں، آپ اس معصوم کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ اس پر تہمت لگانے سے پہلے آپ یہ بھی سوچیں کہ آپ کی بھی ایک بیٹی ہے۔ اس کی بات پر راشدہ بیگم خاموش ہو گئی، مگر غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ پورے ہال میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ پریزے کو کوس رہے تھے، جبکہ سمیہ اور علیزے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ علیزے کی آنکھوں میں غصہ تھا، مگر وہ کچھ بولنے کی بجائے اپنی ناخن کترنے لگی۔ پریزے جو دور کھڑی سب سن رہی تھی، اس کے قدم زمین پر جیسے جم سے گئے، اس کے آنسو اب اس کے رخسار پر بہنے لگے۔ وہ فوراً اپنے کمرے میں آ گئی اور بند ہو گئی۔ پریزے زمین پر بیٹھی ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ اس کا دل کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، پھر کیوں بار بار مجھ پر الزام لگائے جا رہے ہیں؟ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر بے آواز سسکنے لگی۔ آج اس پر واضح ہو گیا تھا کہ اس گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ وہ ایک ایسا کردار ہے جس پر انگلیاں اٹھائی جا سکتی ہیں۔ دوسری طرف شیروز اپنے کمرے میں گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں راشدہ بیگم کی وہ باتیں گونج رہی تھی
जो उन्होंने उसकी मोहब्बत के खिलाफ कही थी। ये सब बहुत गलत हो रहा है। प्रीजे को इस सब का सामना नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उसने खुद से अहद किया। प्रीजे अभी भी आंखों में आंसू लिए बैठी थी। जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, वो चौंकी। कौन? उसकी आवाज़ लर्ज गई। प्रीजे, दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। शेरोज़ की आवाज़ थी। प्रीजे ने आंखें बंद कर ली। नहीं, मैं नहीं कर सकती। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। प्रीजे, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। शेरोज़ की आवाज़ में बेचैनी थी। चले जाएं यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। उस सख्त लहजे में बोली। मैं कहीं नहीं जा रहा जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगी। मैं यही खड़ा रहूँगा। प्रीजे ने बेबसी से दरवाजे को देखा। वो जानती थी कि अगर इसने दरवाज़ा न खोला तो घर में मज़ीद हंगामा खड़ा हो जाएगा। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। शेरोज़ अंदर आया। प्रीजे को सुरख आंखों को देख उसके दिल में तकलीफ की एक लहर उठी। तुम रोई हो? उसने नरमी से पूछा। आप क्यों आया यहाँ? प्रीजे ने नजरें चुराई। मुझे तुमसे कुछ पूछना है प्रीजे। खानज़ादा, शेरोज़ घराते हुए लहजे में बोला। प्रीजे सहम गई। वो आंखों में बेबसी लिए शेरोज़ को देख रही थी। क्या मसला है आपको? आप क्यों मेरी ज़िंदगी मुश्किल बनाने पर तले हुए हैं? उसकी आवाज़ लर्ज रही थी। ये देखें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दें। मेरी ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल मत बनाएं। वो हिचकियों के साथ रोने लगी। शेरोज़ ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में पकड़ा और अंगूठे से उसके आंसू साफ करने लगा। तभी दरवाज़ा धड़ाम से खुला और राशिदा बेगम अंदर दाखिल हुई। देखा, देखो, ये अपने आंसू से खुद को मजलूम साबित करने पर तली हुई है। तभी तो मेरे भतीजे को अपने जाल में फंसा लिया, अपने आंसू दिखा दिखा कर। वो बेचारा मासूम क्या करे? बेगैरत तो ये है। सुमैया बेगम जहर खंद लहजे में बोली। पुप्पो, खबरदार, अगर आपने कोई भी नाजेबा अल्फाज परीजे के लिए अपने मुंह से निकाला तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा आपसे क्या रिश्ता है। शेरोज़ की आंखों में गुस्से की आग भड़क रही थी। इसी लम्हे आजिम खानज़ादा आगे बढ़े। वो शेरोज़ की आंखों में आंखें डालकर बोले। देखो बरखुरदार, अपने जीते जी ये सब मैं होने नहीं दूंगा। अगर तुमने अपनी जिद ना छोड़ी तो मैं तुम्हें आग कर दूंगा। ये सुनते ही सबको सांप सूख गया। पूरे कमरे में एकदम सुनाटा छा गया, मगर शेरोज़ के चेहरे पर एक सुकून सदर आया। वो मजबूत लहजे में बोला। शौक से कीजिए दादा जान, मुझे आपकी किसी जायदाद से कोई गर्ज नहीं है। मैं इस काबिल हूँ कि अपना और अपनी बीवी का ख्याल खुद रख सकूँ। उसकी बात पर सब लोग हैरत से उसे देखने लगे, जबकि राशिदा बेगम और आजिम खानज़ादा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। शेरोज़ की बात सुनते ही आजिम खानज़ादा का गुस्सा आसमान को छूने लगा। वो एक झटके से आगे बढ़े और सख्त लहजे में बोले। तुम होश में तो हो? तुम जानते भी हो क्या कह रहे हो? शेरोज़ ने उनकी आंखों में देखते हुए मजबूत लहजे में कहा। होश में हूँ दादा जान, और आप भी सुन लें, अगर आपने मेरी शादी परीजे से ना करवाई तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, कभी ना वापस आने के लिए। उसके अल्फाज बिजली की तरह सब पर गिरे थे। पूरे हॉल में एकदम खामोशी छा गई। राशिदा बेगम के चेहरे पर हैरत और गुस्से के मिले जुले तासुरात थे। सुमैया बेगम ने बेयकीनी से शेरोज़ को देखा, जबकि अलीज़े की आंखों में शोले भड़क उठे। आज़म खानज़ादा की मुट्ठियां गुस्से से भींच गई। उन्होंने गहरी सांस लेकर खुद पर काबू पाया और सख्ती से बोले। अगर तुम इस घर से गए तो वापस आने का कोई हक नहीं होगा। यह मेरा आखिरी फैसला है। शेरोज़ ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। ये फैसला आपने कर लिया तो अपना फैसला मैं भी कर चुका हूँ दादा जान। ये कहकर रुख मोड़कर वहाँ से चला गया, जबकि पीछे खड़े लोग हैरत और सदमे में डूबे उसे जाता देखते रहे। अलीज़े गुस्से से आगे बढ़ी और बगैर किसी तामीद के परीजे के मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। कमीनी, तूने मुझसे मेरे शेरोज़ को छीन लिया। तू ही फसाद की जड़ है। ना तू इस घर में होती ना ये सब कुछ होता, और मेरा शेरोज़ भी मुझसे मिल जाता। वो पागलों की तरह चिल्लाती जा रही थी और बेदर पे परीजे की गालों पर थप्पड़ बरसा रही थी। कमरे में सब लोग खामोश तमाशाई बने ये सब देख रहे थे, मगर किसी ने भी आगे बढ़कर अलीज़े को रोकने की कोशिश नहीं की। परीजे बेबस होकर चुपचाप सब सहती रही। उसकी आंखों में बेयकीनी और दिल में एक नाकाबिले बर्दाश्त दर्द था। अलीज़े तब तक उसे मारती रही जब तक खुद थक ना गई। फिर एक तेज सांस लेकर नफरत भरी नज़र परीजे पर डाली और गुस्से में दरवाज़ा दराम से खोलकर बाहर निकल गई। बाकी सब भी परीजे पर कहर लूत निगाह डालकर वहाँ से चले गए, जैसे वो वाकई किसी बहुत बड़े जुर्म की मुर्तकिब हुई हो। परीजे वहीं फर्श पर गिरकर बैठ गई। उसका जिस्म कांप रहा था, आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे और वो बेआवाज सिसकियां लेने लगी।
वो इतनी टूटी हुई महसूस कर रही थी कि जैसे उसकी रूह जख्मी हो चुकी हो। हर कोई उसे नफरत भरी निगाहों से देख रहा था, जैसे वो वाकई किसी बहुत बड़े जुर्म की मुर्तकिब हुई हो। परीजे के अंदर एक अजीब सा खला था, जैसे सब कुछ खो चुकी हो। सबके जाने के बाद अनुष्या आगे बढ़ी और उसने नरमी से परीजे को बाजू से थाम कर उठाया और बेड पर बिठाया और उसके बालों को चेहरे से हटाते हुए मोहब्बत से बोली, परीजे, सब ठीक हो जाएगा। ये अल्फाज किसी तसल्ली से ज़्यादा किसी उम्मीद की किरण जैसे थे। परीजे तो जैसे किसी हमदर्द की तलाश में ही थी। जैसे ही अनुष्या ने उसे अपने गले लगाया, वो पूट पूट कर रो दी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो अपने अंदर का सारा दर्द आंसू के जरिए निकाल देना चाहती थी। अनुष्या ने उसे रोने दिया, क्योंकि वो जानती थी कि बाज़ औक़ात रोना दिल का बोझ हल्का कर देता है। लेकिन कुछ तकलीफ़ें ऐसी भी होती हैं जो रोने से कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ जाती हैं। कुछ देर बाद जब परीजे की हिचकियाँ कुछ कम हुई तो अनुष्या ने उसके कंधे पर थपथपाते और नरम लहजे में बोली, देखो परीजे, ना तुम गलत हो और ना ही शेरोज़ भाई। वो तुम्हें पूरे दिल से अपनाना चाहते हैं, वो तुमसे मोहब्बत करते हैं। और वैसे भी जब हमारा इस्लाम दूसरी शादी की इजाज़त देता है तो फिर लोग कौन होते हैं अपनी मर्जी के कानून बनाने वाले। परीजे ने हैरानी से आंसू भरी आंखों से अनुष्या की तरफ देखा। ऐसे क्या देख रही हो? तुम खुद एक पढ़ी लिखी हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें समझाने की ज़रूरत है, इसलिए ठंडे दिलो दिमाग से सोच कर फैसला करना। ये कहकर अनुष्या उसके हाथ से नरमी से दबाव डालकर तसल्ली देते हुए उठ खड़ी हुई और कुछ देर बाद कमरे से चली गई, जबकि परीजे बिल्कुल खामोश साकित सी बैठी रही। उसके दिलो दिमाग में एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी, जिसे वो खुद को समझने की कोशिश कर रही हो। दिन बड़ी खामोशी से गुजर रहे थे। घर में सब लोग अपने कामों में मसरूफ नजर आते, मगर एक खामोश माहिदा था कि कोई भी परीजे से बात नहीं करेगा। ऐसा लगता था जैसे वो घर में होते हुए भी मौजूद नहीं, जैसे वो किसी के लिए कोई हैसियत न रखती हो। सब उससे नजरें चुरा रहे थे। कोई इसकी नज़र देखने का शक्ल देखने का रवादार नहीं था। परीजे इस रवैये की आदी हो चुकी थी। उसे मालूम था किसी से कोई शिकवा करना बेकार है, क्योंकि यहाँ किसी के दिल में भी उसके लिए हमदर्दी की गुंजाइश नहीं बची थी। ऐसे में एक दिन शेरोज़ ने अनुष्या को कॉल की। अनुष्या फ़ोन उठाते ही बोली, जी भाई, सब खैरियत? शेरोज़ ने संजीदगी से कुछ कहा, जिसे सुनकर अनुष्या के चेहरे पर एक मजबूत अज़म उभरा। वो बेसख्ता बोली, भाई आप फिक्र न करें, जो भी करेंगे मैं आपके साथ हूँ। अब बस ये काम जल्द से जल्द करें। उसका लहजा मजबूत था, जिसे वो दिल से शेरोज़ का साथ देने का फैसला कर चुकी हो। उसके अल्फाज में यकीन था, जिसे वो जानती हूँ कि जो होने वाला है वो सबके लिए बेहतर होगा। अच्छा, कल तुम यूनिवर्सिटी जाओगी तो मैं तुम्हें वहाँ मिलूंगा, और जैसे जैसे मैं कहूँगा वैसे वैसे करती जाना, ठीक है? शेरोज़ ने संजीदगी से कहा और फ़ोन बंद कर दिया। अगले दिन अनुष्या यूनिवर्सिटी पहुंची। शेरोज़ वहाँ पहले से मौजूद था। उसने अनुष्या को एक चीज़ दी और कुछ हदायत देते हुए चला गया। अनुष्या ने सर हिलाया और यूनिवर्सिटी के अंदर चली गई। शाम को जब वो घर पहुंची तो सब लोग मामूल के मुताबिक अपने कामों में मसरूफ़ थे। रात के खाने के बाद मुलाजमा चाय बना रही थी कि अनुष्या उसके पास आई और कहने लगी, जाओ, मेरे बेड पर मेरे कपड़े रखे हैं, पहले वो ले आओ, फिर चाय बना देना। मुलाजा चुपचाप उसके कमरे में चली गई और इस दौरान अनुष्या ने खुद चाय बनाकर सबको सर्व कर दी। चाय पीने के कुछ देर बाद ही सबकी आंखें बारी होने लगी और एक एक करके सब अपने कमरों में जाकर सो गए। शेरोज़ ने नींद की गोलियां अनुष्या को दी थी, जो इसने चाय में मिला दी थी। जब सब गहरी नींद में जा चुके तो अनुष्या ने शेरोज़ को कॉल की और सरकोशी में कहा, भाई काम हो गया, अब आप आ सकते हैं। शेरोज़ फौरन घर पहुंचा और सीधा परीजे के कमरे की तरफ बढ़ा। परीजे उसे देखकर फौरन बेड से खड़ी हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, वो परेशानी से बोली। शेरोज़ ने सख्त लहजे में कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। परीजे ने हैरत से आंखें फैलाई, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, तुम जाओ यहाँ से। इतने में अनुष्या भी वहाँ आ गई और नरमी से बोली, भाभी प्लीज़ चली जाए, यहाँ रहकर सबकी नफरत सहने से बेहतर है अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करें। लेकिन परीजे हटदरी से इनकार करती रही। शेरोज़ ने एक नज़र अनुष्या पर डाल ली, फिर परीजे की तरफ बढ़ा और उसने उसकी गर्दन पर मखसूस नस दबाई, जिससे वो फौरन बेहोश हो गई। शेरोज़ उसे अपने साथ ले गया। वो पहले ही शहर में एक फ्लैट खरीद चुका था। वहाँ पहुंचकर उसने परीजे को बेड पर लेटाया और उस पर कंबल डाल दिया और ख़ुद दूसरे कमरे में जाकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर रात का अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन उसके दिमाग में तूफान बरपा था। शेरोज़ ने परीजे की तरफ देखा और संजीदा लहजे में बोला, कुछ ही देर में निकाह ख्वाह यहाँ आ जाएगा और हमारा निकाह पढ़वा देगा।
तुम खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो। फरीज़े के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ निकाह कभी नहीं कबूल करूँगी। वो गुस्से और बेबसी से चिल्लाई। तब उसकी नज़र कमरे के दरवाजे पर पड़ी, जहाँ उसके वालिदैन खड़े थे। उन्हें देखकर तेज़ी से भागी और उनके गले लग गई और सिसकने लगी। देखिए ना मामा, ये मुझसे क्या कह रहे हैं, ये सब इतना आसान है। वो रोते हुए बोली। उसकी माँ ने नरमी से उसके सर पर हाथ रखा और मोहब्बत भरे लहजे में बोली, बेटा, तुम शेरोज़ के साथ निकाह कर लो। ये एक अच्छा इंसान है और तुम्हें बहुत खुश रखेगा। हमारी भी यही मर्जी है। हम खुद इस रस्म के ख़िलाफ़ है जो गांव वालों ने अपने तौर पर बिना रखी है। मैं तो इस दिन से सुकून से सो भी नहीं सकी जिस दिन तुम्हें इस कैद में दे दिया गया था। लेकिन अब मुझे यकीन है कि शेरोज़ तुम्हें ज़िंदगी के रंगों से रोशनास करवाएगा और तुम दोबारा से अपनी ज़िंदगी जीने लगोगी। मगर मामा, सब लोग आपको क्या क्या बातें सुनाएंगे, आपका सर झुक जाएगा। बल्कि झुक क्या है, सब यही कहेंगे कि मैं भाग गई हूँ। हमारे गांव वाले आपको बुरा भला कहेंगे। फरीज़े ने बेचैनी से कहा। उसके वालिद आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहने लगे, तुम हमारी फिक्र मत करो, हमें इस सब की परवाह नहीं। हम शेरोज़ के फैसले के साथ हैं और यही हमारा हुक्म है और इल्तिजा भी। तुम्हें इससे निकाह करना होगा। ये सुनकर फरीज़े के दिल को सुकून मिला, क्योंकि अब इस निकाह में उसके वालिदैन की मर्जी भी शामिल थी और उन्हें समझाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद शेरोज़ था। वही उनके पास गया था उन्हें मनाने के लिए, और वो लोग मान भी गए थे, क्योंकि वो पहले ही अपनी बेटी को खुश और आज़ाद देखना चाहते थे। फिर कुछ देर में शेरोज़ का दोस्त तैमूर निकाह ख्वां के साथ फ्लैट में पहुंच गया। निकाह की तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। फरीज़े का दिल बेइख्तियार धड़कने लगा, जैसे उसे अभी तक यकीन ना आ रहा हो कि ये सब हकीकत में हो रहा है। मौलवी साहब ने शेरोज़ से निकाह के लिए रजामंदी पूछी। कबूल है, कबूल है, कबूल है, शेरोज़ ने मजबूत लहजे में कहा, जैसे उसे अपने फैसले पर कोई शक ना हो। फिर बारी आई फरीज़े की। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल बेकाबू धड़क रहा था, लेकिन वालिदैन की रजामंदी और ज़िंदगी के अगले मरहले ने उसे हकीकत से खामोश कर दिया था। कबूल है, उसने धीरे मगर वाज़ेह लहजे में कहा। यूं निकाह मुकम्मल हो गया और मौलवी साहब ने दुआ करवाई। तैमूर ने शेरोज़ को मुबारकबाद दी, जबकि फरीज़े के वालिदैन उसके सर पर हाथ रखकर उसे दुआओं में रुखसत करने लगे। आज वो एक नए सफ़र में बन चुकी थी, एक नई ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी। हवेली में जब फरीज़े की गैर मौजूदगी का पता चला तो सब ही से बुरा भला कहने लगे, कोसने देने लगे। ख़ास तौर पर सुमैया बेगम, जो गुस्से से कांप रही थी। वो कल मुही मनहूस मारी थी ही बदचलन और बरकिरदार, बेगैरत, इज्जत रोल गई सबकी। वो चीख कर बोली। तभी अनुषा आगे बढ़ी और दो टोक लहजे में बोली, फूफो, किसी को बुरा बुला कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। अनुषा, तमीज़ से बात करो। राशिदा बेगम सख्ती से बोली। मामा प्लीज़, एक बार मेरी बात मुकम्मल होने दें। अनुषा ने सख्ती से कहा और सुमैया बेगम की तरफ मुड़ी। आप कह रही हैं कि फरीज़े बदचलन बदकिरदार है, लेकिन ज़रा सोचिए, आपकी अलीज़े कौन सा दूध की दुली है। अनुषा, बकवास बंद करो। अलीज़े गुस्से से चिल्लाई। नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। भाई के आने से पहले तुम शहबाज चौधरी से अफेयर चला रही थी, लेकिन जैसे ही भाई वापस आया तुमने देखा कि वो एक हार्ट सर्जन है, इकलौता वारिस है, बेपनाह दौलत का मालिक है, तो तुमने फ़ौरन अपनी चाल चल दी। और जब भाई ने फरीज़े का नाम लिया तो तुम्हें लगा कि सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल रहा है, तभी तुमने फरीज़े को मारा और उस पर इल्ज़ामात लगाए। लेकिन जब तुम्हें लगा कि भाई फिर भी तुम्हें घास नहीं डाला तो तुमने यूनिवर्सिटी में मलिक रोशान को फंसा लिया, क्योंकि वो भी काफ़ी अमीर कबीर था। और इस सब में फूफो, आपने इसका पूरा साथ दिया। ये सब झूठ है। तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? सुमैया बेगम ने चीख कर कहा। सबूत? अनुषा तंजियां हंसी और फिर मोबाइल निकाल कर वीडियोस और तस्वीरें सबके सामने रख दी। ये सब देखकर सबकी आंखें हैरत से फैल गई और सुमैया बेगम और लीजे तो हक्का बक्का रह गई। दादा जान ने गुस्से से मुठियां भींच ली। और ये भी तो बनाओ अनुषा कि बिलावल तुम्हारे बाबा और तुम्हारे दादा को किसने मरवाया? वो भी फूफो और अलीज़ा ने। अनुषा ने फौरन कहा, ताकि भाई इकलौता वारिस बन जाए, और इसका भी सबूत मेरे पास है। फिर उसने वो वीडियो चलाई जिसमें अलीज़े और सुमैया बेगम आपस में बात कर रही थी, और पास से गुजरते अनुषा ने ये सब सुनकर रिकॉर्ड कर लिया। ये देखकर पूरे घर में सुनाटा छा गया। सब सदमे में थे। दादा जान ने सख्त लहजे में कहा, इन दोनों को फौरन पुलिस के हवाले कर दो। चंद लम्हों में पुलिस आ गई और सुमैया बेगम और अलीज़े को गिरफ्तार कर लिया गया। अनुषा ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, अब भी आप लोग फरीज़े को गलत और मनहूस समझते हैं? मामा, ज़रा सोचे,
اگر خدا نہ خواستہ یہ سب میرے ساتھ ہوتا تو کیا آپ مجھے اب ساری زندگی قید برداشت کر سکتی؟ نہیں نا، تو پھر پریزے کے لیے کیوں؟ راستہ بیگم کی آنکھوں میں شرمندگی اور ندامت کے آنسو تھے۔ وہ آج سمجھ چکی تھی کہ اصل قصوروار کون تھا۔ اس کے بعد دادا جی نے شیروز کو کال کر کے فوراً گھر بلوا لیا۔ جیسے ہی وہ حویلی پہنچا، سب نے اسے گلے لگا کر خوش آمدید کہا۔ ہم نے بہت بڑی غلطی کی بیٹا، دادا جی نے افسوس بڑے لہجے میں کہا، اور یہ سارے قانون اور اصول جو ہمارے بزرگوں نے بنائے، آج ہم انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر رہے ہیں۔ پریزے کو دیکھ کر راستہ بیگم، اس کے والد اور باقی گھر والوں کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو آ گئے۔ ہمیں معاف کر دو بیٹا، انہوں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ پریزے کی بھی آنکھیں بھیگ گئی، مگر اس نے سب کے چہرے پر پچھتاوے کی پرچھائیاں دے کر دل بھرا گیا اور سب کو معاف کیا۔ انوشی اور تیمور کی شادی کر دی گئی، کیونکہ اس نے شیروز کو بتایا کہ وہ انوشی کو پسند کرتا ہے، تو شیروز کو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ تیمور کو اچھے سے جانتا تھا۔ اس نے دادا جی سے بات کر کے اس کے ساتھ شادی کروا دی۔ انوشی اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ یوں برسوں بعد اندھیرے چھٹ گئے، پریزے کی زندگی میں پھر سے خوشیوں کے رنگ بکھر گئے، اور شیروز کے ساتھ ایک نئے سفر کا آغاز ہو گیا، جہاں محبت اور اعتماد ان کا ہم سفر تھا۔